Hi friends, I'm Anand Punchbat Engineers class and let us deal with the next topic. We have started pure resistive and pure inductive circuit. How exactly they behave when the sinusoidal supply is applied to these two components. Okay, so now let's talk about so now let's talk about pure capacitive circuit. So if I talk about a pure capacitive circuit, this is the supply that I'm giving. This is the supply that I'm giving. Then खबर पड़ी? This is the supply that I'm giving. So not while I'm recording the video, whatever. Otherwise it's fine. So V which is equal to Vm sine omega t, and I'm interested to find out the value of current. Fine, ठीक है. Now I know that this is a capacitor. Voltage across capacitor is basically Vm sine omega t. We can see the way we have seen it last time. Voltage across capacitor is nothing but Vm sine omega t. But I know the formula for voltage across capacitor, which is given by 1 upon C integral I dt. Yes or no? Fine. You know this formula? Or if you don't know this formula, I mean, tell me if you don't know this formula. Do you know this formula? You don't. Even I don't know. Let us understand. We know that current which is equal to dq by dt. Yes or no? Current is dq by dt. So dq which is equal to I dt. dq which is equal to I dt. So q which is equal to integral I dt. Yes or no? Fine. Voltage across capacitor is nothing but q by c. Q is nothing but 1 upon c as it is. Q is nothing but integral I dt. Is it clear or not? कोई डाउट इसके अंदर? So we understood voltage across capacitor is 1 upon c integral I dt. बेटा बाहर का वो दरवाजा सिर्फ बंद करके आओ. So we have got voltage across capacitor is 1 upon c integral I dt. We got this value. Okay, fine. So now voltage across capacitor basically is Vm sin omega t. I'll put it is Vm sin omega t, which is equal to 1 upon c integral I dt. So I can say that C Vm sin omega t. We are interested to calculate the value of current. Fine. So we can say that is equal to integration I dt. Yes or no? अभी मुझे करंट को यहाँ से निकालना है तो I have to take differentiation over here. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है तो वो उड़ जाएंगे. So we can say that taking differentiation both the sides will be having d by dt of C Vm sin omega t, which is equal to d by dt of integration I dt. So इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन मतलब I निकल आया कि नहीं आया, तो इस I को मैं यहाँ पे लिखता हूँ. सो I ये यहाँ पे लिखा, पता चला कि नहीं पता चला? दैट इज इक्वल टू CVM कांस्टेंट विल कम आउटसाइड. साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos omega t multiplied by omega. So we have got omega c into Vm into cosine of omega t. Is it clear? Fine. अच्छा, omega c को हम ऐसा बोल सकते it is Vm divided by 1 upon omega c, and 1 upon omega c is called as xc. Fine. So it is Vm upon 1 upon omega c, यानी omega c कूद के ऊपर आ गया. So into cosine of omega t. So I have got the voltage equation. I can say that my current equation is given by Vm by xc into cosine of omega t. So I have got I which is equal to Im cos omega t. कोई डाउट इसके अंदर? फाइन. अभी वी हैव टू ड्रॉ द वेव फॉर्म. सो लेट अस ड्रॉ द वेव फॉर्म्स. सो वेव फॉर्म्स के लिए पहले वोल्टेज ड्रॉ करेंगे. सो these are Vm sin omega t. ये पता चला Vm sin omega t. You will see the videos, you'll understand it. Don't worry. बहुत डिटेल में समझा है ऐसा कर्व कैसे आता है उसमें भी. फाइन. साइन का पूरा वैल्यू रख के we have understood that. So this is 0. This is pi by 2. This is pi. This is 3 pi by 2. This is 2 pi. Is it clear? Fine. Okay. Now let's talk about current equation. तो current क्या है? Im cos omega t. तो cos 0 क्या होता है? Cos 0 1 multiplied by Im. So Im. Suppose this is my Im. This much is Im. This is minus Im. पता चला कि नहीं पता चला? तो प्लस Im ये हो गया और माइनस Im ये हो गया.
फाइन, चलो. सो नाउ लेट्स ड्रॉ द करंट. cos पाई बाई 2 0, cos पाई -1 इंटू आई एम माइनस आई एम, तो यहां पे cos 3 पाई बाई 2 0, cos 2 पाई 1 इंटू आई एम इट्स प्लस आई एम. सो वी हैव गॉट अ करंट. कैन यू अंडरस्टैंड? फाइन, तो मेरे को करंट पता चल गया कैसे आया. ओके, सो नाउ वी कैन से दैट, सपोज इसको और थोड़ा आगे हम लोग लेके जाए, इसको हम थोड़ा और आगे लेके जाए. फाइन, लेट्स सी. सपोज दिस इज हाउ माई वोल्टेज, तो करंट यहां से आगे निकलेगा ना, नीचे आएगा ना, करंट ऐसे नीचे आएगा ना, पता चला. सो जिस क्वाड्रेंट में फाइन, कितना तुझे यहां पे बुलाना पड़ता है मुझे बेटा. आई ट्रूली अंडरस्टैंड यू डोंट वांट टू स्टडी टुडे. देख, वोल्टेज जस्ट चालू हो रहा है, वोल्टेज जस्ट चालू हो रहा है, तब तो वो ऑलरेडी मैक्सिमम था. देखा, करंट वॉज ऑलरेडी मैक्सिमम. फाइन, करंट वॉज ऑलरेडी मैक्सिमम, मतलब वोल्टेज अभी चालू, उस ऊपर की साइड वोल्टेज जस्ट चालू हो रहा है, तब तो करंट ऑलरेडी मैक्सिमम था. फाइन, तो यहां पे करंट पहले आ जाता है, यहां पे करंट पहले आ जाता है और बाद में वोल्टेज आता है. यदि वोल्टेज करंट के बाद वोल्टेज आता है, करंट ऑलरेडी मैक्सिमम हो गया तब जाके, यानी देखो करंट चालू हो गया, करंट ऑलरेडी मैक्सिमम हो गया, उसके बाद तो वोल्टेज वहां पे चालू हुआ. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? करंट जीरो से मैक्सिमम हो गया, तब जाके तो वोल्टेज उस डायरेक्शन में चालू हुआ. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? तो यहां से पाई बाई टू जितना बाद में वोल्टेज आया. फाइन, तो वोल्टेज से पहले कौन है? करंट है. तो आई कैन से दैट हियर करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री. समझ पड़ा? करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, पहले करंट आता है बाद में वोल्टेज आता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? इंडक्टर में क्या था? करंट वाज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. यहां पे क्या है? कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, ओके, चलो. सो वी कैन से दैट, अगर वेक्टर डायग्राम, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आई विल से दैट अगर ये वोल्टेज है तो करंट लीड कर रहा है, यानी पहले करंट आएगा, गोल घूमते वक्त पहले करंट आएगा, बाद में वोल्टेज आएगा. क्लियर हुआ? फाइन बेटा, यहां पे ध्यान दे हेत. फाइन, सो वी कैन से दैट पावर फैक्टर इज कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विच इज 90, तो 0. प्योर इंडक्टिव में भी क्या था? 0. प्योर कैपेसिटर में भी क्या हो गया? 0. पता चला कि नहीं पता चला? प्योर इंडक्टर में भी 0 है, प्योर कैपेसिटर में भी 0 है. तो just by looking at power factor we cannot identify whether it is a inductive circuit or a capacitive circuit. So we have a convention कि हम लोग लिखेंगे 0 lead. पता चला कि नहीं पता चला? और इंडक्टर में क्या लिखेंगे? 0 लैग. राइट, तो वो कल जो फिल इन द ब्लैंक था अपना, उसमें लैग आने वाला था. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, सो फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर एल सर्किट, पावर फैक्टर विच इज इक्वल टू 0 लैग. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? और कैपेसिटर, क्योंकि दोनों में 0 आता है, इंडक्टर में क्या होता है? करंट 90 डिग्री लैग करता है, यानी वापस वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो वहां पे लैग कर रहा है, तो पावर फैक्टर 0 हुआ, तो 0 लैग बोलेंगे उसको. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, चलो. ये होने के बाद पावर की बात करते. तो पावर के लिए अगेन वी कैन से दैट पावर विच इज इक्वल टू V इंटू आई. V कितना है? Vm sin ओमेगा टी. I कितना है? Im cos ओमेगा टी. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अला क्लियर हुआ? सो वी कैन से दैट इट इज Vm Im, मैं बाई 2 करूंगा और 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, कल जैसा ही, sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी. 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी इज sin 2 ओमेगा टी. सो विल बी हैविंग Vm Im बाई 2 sin 2 ओमेगा टी. अभी ये प्लस से चालू हो रहा है. फाइन, तो देखो ना यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेट पॉजिटिव, पाई बाई 4 पे मैक्सिमम. पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? फाइन, कल का देखोगे तो पता चल जाएगा, डोंट वरी. सो पाई बाई 4 पे मैक्सिमम. सो वी हैव गॉट इट लाइक दिस. बाद में ये जितना है उतना ही नीचे जाएगा. देख, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आएगा. नेगेटिव तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव और नेगेटिव तो मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आएगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? तो पूरी साइकिल में वी हैव गॉट इट डन. फाइन, सो दिस इज अ पावर व्यू फॉर्म. ओमेगा टी की अलग अलग वैल्यूज यहां पे रखते जाओ तो आपको ये पॉइंट्स मिलते जाएंगे. मैक्सिमम कितना हो गया? Vm Im बाय
2, वी एम आई एम बाई 2, नेगेटिव में भी वी एम आई एम बाई 2। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फाइन, ओके। सो वी हैव गॉट दिस थिंग, वापिस एवरेज क्या हो जाएगा इतना, अल्टीमेटली साइन टू ओमेगा टी का एवरेज, साइन टू ओमेगा टी का एवरेज 0 हो जाएगा, जो कल हमने डिराइव किया था। तो एवरेज के लिए वही डेरिवेशन यहाँ पे करना है और 0 उसको प्रूव करना है एवरेज पावर को, ठीक है, फाइन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, डोंट वरी। क्लियर हुआ है, कोई डाउट इसके अंदर, फाइन, चलो लिखो।